Coaches of Bengal, they are illiterate. They don't know how to use and how to, basically उन्होंने एक कथा है जे आप लोग जो डालते हो पिछवाड़े में वो हम लोग बनाते हैं. What is steroid? Steroid क्या है, वो कैसे काम करता है बॉडी में? या तो हाई एस्ट्रोजन लेवल से आएगा, आपका अगर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल हिला है तो आपको बैन होगा, या फिर पहली पॉइंट यही बोलना चाहूँगा कि स्टेरॉइड आपको यूज़ ही नहीं करना है. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. आपको अगर सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन स्टेरॉइड यूज़ होता है? তো বন্ধুরা, আমি আবার চলে এসেছি এসএন ফিটনেস মিডিয়ার নতুন আরেকটা এপিসোড নিয়ে। আর আজকে আমি আছি একটা ওয়ার্কশপে, যেখানে স্টেরয়েড সম্পর্কে কিছু নলেজ দেওয়া হচ্ছে, তাই তো? আর যে আয়োজন করেছে সেটা হচ্ছে সঙ্গীত নাথ। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই চেনো, ইউনিভার্সিটি কিন্তু সিলভার মেডেল নিয়ে এসছে, আমাদের কিন্তু দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে, ঠিক আছে, দেশকে একটা মেডেল দিয়েছে। আচ্ছা, সঙ্গীতের ইন্টারভিউ আসবে, সেটা পরের বিষয়। প্রথম হচ্ছে এই যে ওয়ার্কশপটা হচ্ছে, এটা কী বেসিসে করছো তোমরা এবং কেন হওয়া উচিত এরকম ওয়ার্কশপ? বেসিক্যালি পেডস ওয়ার্কশপ, পারফরমেন্স এনহান্সিং ড্রাগ অ্যান্ড কম্পিটিশন প্রেপ সার্টিফিকেশন করানো হচ্ছে। যে কম্পিটিশন তুমি করো কি না করো, তোমার ডিউরিং সাইকেল মিনস স্টেরয়েডস অ্যাবিউজ করা হয়। দ্য মোস্ট অফ দ্য কোচেস অফ বেঙ্গল, দে আর illiterate. They don't know how to use and how to, if someone asks them যে why, তো ওরা থ হয়ে যায় যে কেন, আমি কী করবো। সেটা সব থেকে বড়ো এক্সাম্পল হচ্ছে যে তোমাকে যদি বলা হয় যে আমি গেনিং করব, তো ওরা তোমাকে কী দেবে, তো বোল্ডা ট্রেন বলুন মিক্স করে দেবে এক্সেট্রা। কিন্তু ওগুলো ম্যাটার করে যে আমি কেন দেবো, কি কেন দেবো না এক্সেট্রা। হাফ লাইফের পরেই যে পিসিডি করতে হবে এরকম নাই, এইচসিডি ইউজ করা নেই সমস্ত কিছু। পিক উইকে কী করা হবে, অনেকে সল্ট বন্ধ করে দেয়, নুন বন্ধ করে দেয়, ওয়াটার বন্ধ করে দিল, সেটা করে এই খাবে না, ওই খাবে না, সে করবে না, কাপ ধরে ছেড়ে দিতে লাগবে, আরও অনেক রকম মিথ আছে। ওগুলো যাতে বেঙ্গলের ছেলেরা, নতুন অ্যাথলিটরা যাতে কোনোভাবে মিসইউজ না করা হয়, কোনো ভুলভাল না করা, যাতে যারা কোনো যেসব ফেক কোচেসরা যে টাকা কামাচ্ছে যেভাবে বোকা বানিয়ে, উল্লু বানিয়ে ওদের অর্গ্যানস ড্যামেজ করিয়ে এই জিনিসগুলো, ওই জিনিসগুলো না, সেজন্য এই ওয়ার্কশপটা বেসিক্যালি করানো হয়। আমি নিজে করেছি, নিজে সার্টিফাইড এইসব বিষয়, এবং আমি বাইরে থেকে ওয়ার্কশপ করেছি 3 থেকে 4টে। তারপর করে আমি ভেবেছি যে আমি বেঙ্গলেও করাবো, তো আজকে হচ্ছে ওটা বেঙ্গলে। আজকে যে যিনি ওয়ার্কশপে এসছেন আর কি, উনি কোথা থেকে এসছেন? উনি দিল্লি থেকে এসেছেন, সুনীল স্যার। তো ওনার ইন্টারভিউ আমরা একটা নেবো। হ্যাঁ, অবশ্যই ওনার নেবে। উনি 12 years এক্সপিরিয়েন্স ফার্মাকোলজিস্ট এবং এমফার্ম করা, আরও খুব হাইলি কোয়ালিফাইড। অ্যান্ড बेसिकली ওনার একটা কথা আছে যে आप लोग जो डालते हो पिछवाड़े में वो हम लोग बनाते हैं। আচ্ছা, তাহলে ওনারটা ইন্টারভিউ নিতেই হবে, আর আমার দর্শকরা বোধহয় নিশ্চয়ই উপকৃত হবে ব্যাপারগুলো সম্পর্কে। তো সঙ্গীত, থ্যাংক ইউ। আর ওনার তার ইন্টারভিউটা নিয়ে পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখো বন্ধুরা, খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, যেরকম বলেছিলাম আজকে এই এপিসোডটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, তাই সেই ইন্টারেস্টিং এপিসোডটা তোমাদের জন্য আজকে আমি তুলে ধরতে পেরেছি একমাত্র সঙ্গীত নাথের কারণে, ঠিক আছে? ও আমাকে ইনভাইট করেছিল, আর ওনাকে পেয়ে আমরা খুবই ভালো লাগছে। সুনীল স্যার সোজা দিল্লি থেকে এখানে এসছে, আজকে স্টেরয়েড সম্পর্কে কিন্তু প্রচুর নলেজ আমাদের সাথে শেয়ার করেছে। তা চলো আজকে স্যারের সাথে ডাইরেক্ট শুনে নিই ব্যাপারগুলো কি। सर सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। और सबसे पहले हमको बताइए, हम लोग का जो व्यूअर्स उन लोग को बताइए, व्हाट इज स्टेरॉइड? स्टेरॉइड क्या है, वो कैसे काम करता है बॉडी में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। स्टेरॉइड्स देखिए, स्टेरॉइड बेसिकली बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज़ के होते हैं, राइट? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, आपके एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं। लेकिन क्योंकि आज हम बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में जो हम बात हो रही है, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो मेन हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनता है। जो हमें एक नॉर्मल आदमी को कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती हैं, वॉइस का हार्ड होना, हमारे मैन के जो हमारे सिम्टम्स होते हैं जब बच्चा बड़ा होता है, प्यूबर्टी में बियर्ड आना, मूछें आना, ठीक है, तो इनके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और मसल बिल्डिंग के लिए भी, एनाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। तो टेस्टोस्टेरोन या इसके आर्टिफिशियली जो भी डेरिवेटिव्स बने हुए हैं, तो ये इस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। और बॉडी की नेचुरली बनाने की लिमिट होती है, जैसे रोज़ हमारी बॉडी सिर्फ 5 से 7 mg बनाती है। तो अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ करना हो मसल का, तो लोग इसको बॉडी बिल्डर बाहर से एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, ताकि उनका जो नेचुरल कैपेबिलिटी है उससे एक्स्ट्रा उनको स्टेरॉइड मिले और ज़्यादा बड़ी बॉडी बन जाए। ये काम कैसे करता है बॉडी में? ओके, ये काम करता है, बॉडी में एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो बाहर से कोई भी स्टेरॉइड लेते हैं, उन एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं, एंड देन जो भी उसकी एक्टिविटी चाहिए होती है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करना, रिकवरी रेट को इंक्रीज़ करना, मसल का साइज़ बढ़ाना, मसल ग्रोथ में हेल्प करना, और बहुत सारे पाथवेज होते हैं। बट ओवरऑल
एक जो नेचुरल आपका पोटेंशियल होता है ग्रोथ होने का, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप मसल होल्ड कर लेते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ों के साथ साथ फ़ायदों के साथ में नुकसान भी होते हैं, तो इनके साथ भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं और ये चीज़ें ऐसे यूज़ करने के लिए नहीं होती हैं। डॉक्टर इन चीज़ों को अगर यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर गाइडेंस या फिर उसको थेरेप्यूटिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग में आजकल इसका ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये ना ही रिकमेंडेड है और ना ही सेफ़ है। तो अभी लेता क्यों है? क्योंकि हर कोई अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है, ज़्यादा बड़ा साइज़ लेके जाना चाहता है, कंपटीशन है, compete करना चाहता है, राइट। तो ये चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं और इन चीज़ों के उनको फ़ायदे ही दिखते हैं, इसलिए वो लोग ले रहे हैं। लेकिन जब उनको इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट पता चलते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल भी करते हो तो किसी ऐसे सुपरविज़न में करो जहाँ पे जिनको इस चीज़ की नॉलेज हो और जो आपको एक सही मायने में इन चीज़ों के बारे में गाइड कर सके। आप तो रिकमेंड करता है कोई भी अच्छा कोच के पास जाके ये लेना चाहिए? देखो, कोचिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। कोचिंग में ठीक है, कोचिंग में ट्रेनर है आपका, उसको एक्सरसाइज की नॉलेज है, बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको कोई नॉर्मल जो कोच है, ट्रेनर है, आप यही देखें उनको इस चीज़ की नॉलेज कहाँ से मिलेगी? अनलेस एंड अनटिल या कोई मेडिकल प्रोफेशन से है या कोई फार्माकोलॉजिस्ट है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा। किसी कोच के पास में अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो वो अपना एक्सपीरियंस दे सकता है, राइट। लेकिन अगर आपको सही में किसी का गाइडेंस चाहिए तो कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास इन चीज़ों की कोई ना कोई क्वालिफिकेशन हो या बैकग्राउंड नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ में यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग में एक चीज़ हम लोग को सुनने मिलता है, ब्लास्टिंग और क्रूजिंग। ये चीज़ क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, ब्लास्टिंग क्रूजिंग क्या होता है, ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी दी हुई है। अब जैसे कि नाम बता रहा है, जब हम हाईवे पे जाते हैं हम अपनी गाड़ी को क्रूज़ करते हैं, मतलब एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे। ब्लास्टिंग का मतलब है कि एकदम से धमाका करना। अब क्योंकि जो एथलीट होते हैं उनको पूरे साल शेप में रहना पड़ता है और पूरे साल उनका compete करने का उनका मन होता है, राइट। तो क्रूज़ करने का मतलब ये होता है कि नेचुरली चीज़ों को कम क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर डोज पे उसको क्रूज़ करना, राइट। और जैसे ही मान लो कंपटीशन की डेट पास में आई, 2 महीने 3 महीने, उसमें वो डोज फिर अपनी जो ऑन साइकिल की जो बेसिक डोज होती हैं या फिर बाकी कंपाउंड्स की स्टैकिंग होती है, उन सबको एक प्रॉपर जो प्रेप होती है उसमें जब अपने स्टैक को वो लोग इंक्लूड करके प्रेप करते हैं, उसको बोल देते हैं ब्लास्टिंग। तो क्रूजिंग का मतलब ये कि कांस्टेंट डोज पे चलना, ताकि जो मसल मास होल्ड किया हुआ है वो बेसिकली लॉस ना हो जाए। और ब्लास्टिंग का जब आपका कंपटीशन का टाइम पास में आया तो 4 हफ्ते की, 6 हफ्ते की, 8 हफ्ते, जो भी उनका कोच उनकी साइकिल बनाता है, उसमें बाकी कंपाउंड को भी यूज़ करना। और जो एक्चुअल प्रेप है उसमें थोड़ी डोजेज भी हाई रहती हैं, उसको ब्लास्टिंग बोलते हैं। देखो, जब आप कोई चीज़ बाहर से लेते हो तो आपका जो नेचुरल एंडोक्राइन सिस्टम है वो इम्पैक्ट होता है। कोई चीज़ हमको जब बाहर से मिल रही है तो बॉडी हमारी नेचुरली क्यों बनाएगी, है ना। तो पीसीटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पोस्ट साइकिल थेरेपी, एक तो जो आपका एचपीटी एक्सिस है जो बॉडी ने नेचुरल बनाना बंद किया गया है वो दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाए। उसके अलावा जो ऑर्गन हेल्थ है और जो भी आपके हेल्थ के पैरामीटर इधर उधर हो जाते हैं ऊपर नीचे, आपका KFT है, किडनी फंक्शन टेस्ट, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट, आपका लिपिड प्रोफाइल, और भी ब्रेन हेल्थ, तो बहुत सारे इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो उन चीज़ों को भी ठीक करने के लिए, बॉडी को दोबारा से रेजुविनेट करने के लिए पीसीटी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 3 महीने 4 महीने अपना AC भी यूज़ करते हो, उसके लिए भी सर्विसिंग की ज़रूरत है। आप अपनी गाड़ी के जब आपके 10,000 किलोमीटर हो जाते हैं उसकी भी सर्विसिंग करनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए पीसीटी भी इम्पोर्टेंट है, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम हिला हुआ है उसको दोबारा से नॉर्मल उसमें लाने के लिए। गायनों का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो गायनों का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं ज़्यादातर इंटीरियर जहाँ पर जो लोग रहता है, अर्बन एरिया में रहता है, जिसका भी इतना नॉलेज नहीं होता है, उसका गायनो हो जाता है। तो इसको कैसे गायनो नहीं आए या क्या करने से होगा? देखिए, गायनो आपका या तो हाई एस्ट्रोजन लेवल से आएगा, आपका अगर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल हिला है तो आपको गायनो होगा, या फिर हाई प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से गायनो होगा। अब इसमें मुद्दा ये आता है कि लोगों को पता तो है कि ये चीज़ लेने से बॉडी बन जाएगी, लेकिन उनको उसका आगे का पाथवे नहीं पता। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है वो आपका एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, राइट। अब जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, अब एस्ट्रोजन बेसिकली ह्यूमन बॉडी में एक मेल में जितना बनता है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो आपका जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो एनराज होगा। तो जो प्रोफेशनल गाइडेंस में चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको पता भी होता है कि इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना। कुछ स्पेसिफिक टैबलेट्स आती हैं वो यूज़ कर लेते हैं, या फिर डोसेज ऐसे प्लान करते हैं कि आपका उतना लेवल का एस्ट्रोजन बढ़े ही नहीं। लेकिन जैसा बोलते हैं ना कि सिर्फ लोगों को
पॉजिटिव साइड दिखाई देता है, इसलिए उनको ये लगता है कि ये चीज़ ले लेते हैं, इससे बॉडी बन जाएगी, तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो मैंने पहले बोला था कि ये चीज़ें प्रोफेशनल गाइडेंस में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इन एंड आउट पता होना चाहिए। तो कोई चीज़ अगर हो रही है उसका क्या पाथवे है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें प्रोफेशनल गाइडेंस में यूज़ करें तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, अब हमको बताइए, स्टेरॉइड यूज़ करने के बाद तो बहुत हम लोग का प्रॉब्लम होता है, जैसे हेयर फॉल हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट बड़ा हो जाता है, जब जो कैपेसिटी इससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एक बॉडी बिल्डर का हाथ तो 4 किलो तक हो जाता है, इतना तो होना नहीं चाहिए ना। तो हमको बताइए ये क्या ठीक कर सकता है हम लोग? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको होने ही नहीं देनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होने के बाद में देयर आर चांसेस कि वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो हाथ से निकल जाएँ तो वो ठीक नहीं हो सकती। तो डैमेज अगर कोई चीज़ हो रही है तो आपको उसको उसी टाइम ठीक करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि ये चीज़ हो जाएगी, राइट। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि कोई भी उठा के या कोई भी कोच किसी को भी दे देगा, उसको सब एक चीज़ का पता होना चाहिए। जब आप खाना बनाने जाते हैं तो आपको पता होता है कि मीठा डालने से ये होएगा या फिर ये वाला मसाला डालने से ये टेस्ट आएगा। तो ये आप एक अच्छे शेफ़ हो, राइट। तो कि आपको पता है कि कितना मसाला डालना है, कैसे क्या करना है, आपको हर चीज़ के बारे में पता है कि अगर मुझे खटास चाहिए तो मुझे ये वाली आइटम डालनी है, अगर मुझे मीठा करना है तो ये वाली आइटम डालनी है, राइट। तो सेम वे में आपको जो भी ये कंपाउंड यूज़ होते हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसको इतनी डोज में लेना है या फिर इतनी डोज में लेते टाइम जो बॉडी हमारी सिग्नल्स देती है, ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में गायन हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बॉडी हमारी हमको सिग्नल देती है और हमको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जो साइकिल से पहले, ड्यूरिंग द साइकिल या पोस्ट साइकिल आपको करवाने चाहिए, उनको आपको एनालिसिस करना आना चाहिए एंड उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या ऑर्गन हेल्थ है, आपकी बॉडी में हो क्या रहा है। क्योंकि शीशे में देख रहे हो आपकी बॉडी बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो उसी चीज़ों के लिए मैं दोबारा से यही कहूँगा कि प्रोफेशनल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस जो स्टेरॉइड जब चलता है तो हम लोग का जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है वो सेक्स का प्रॉब्लम होता है, हाँ, तो वो क्या फिर से क्या ठीक कर सकता है? ओके, देखिए, जो पीसीटी होती है उसका मेन एम ही यही होता है कि आपका जो एसपीटी शटडाउन है उसको दोबारा से रीएक्टिवेट किया जाए। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि लोग सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को रीएक्टिवेट कर लेते हैं, टोटल टेस्टोस्टेरोन करवा लिया, फ्री टेस्टोस्टेरोन करवा लिया, पीसीटी के बाद वो ओकर हो गया। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्पर्म काउंट, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, मोबिलिटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका कोई टेस्ट नहीं करवाता है। फिर जब वो टाइम आता है जब उनको पता चलता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब उनको पता चलता है कि एक्चुअली मुझे ये डैमेज हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे उनको किसी ने ये ब्लड टेस्ट रिकमेंड नहीं किया और इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो चीज़ें अगर हम उसी टाइम रेक्टिफाई करते चलें तो उस हद तक वो लेवल आएगा ही नहीं कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम होती भी है तो भी मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी रेक्टिफिकेशन के लिए, लेकिन उसमें चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। वो उस पर डिपेंड होता है कि किस हद तक आपको डैमेज हुआ है, कितना टाइम हो चुका है, अभी हाल फिलहाल में आपने कोई साइकिल चलाई है या फिर 2 साल पहले चलाई थी, 6 साल पहले चलाई थी, तो वो भी फैक्टर इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अगर कोई प्लेयर को स्टेज खेलना है, बिगिनर बात कर रहे हैं हम, अगर उसको चैम्पियन होना है तो कितना साइकिल चलाना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपको मैं बोलूँ कि आपको आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, कितना पढ़ना पड़ेगा, तो इसका कोई सवाल नहीं है ना। तो ऐसा सच कुछ नहीं है, कैसे कैसे बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है ट्रेनिंग को, न्यूट्रिशन को, डाइट को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे कोई पहले से प्री डिफाइंड हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एनालिसिस करता है आपका, देन आपको मेडिसिन देता है। अदरवाइज़ लोग डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे ना, फ़ोन पे सारे काम हो जाएंगे, राइट, इसलिए। अच्छा, अभी तो आ गया है बहुत सारा ओरल फॉर्म में आ गया, आयुर्वेदिक फॉर्म में आ गया, जैसे गोक्षुरा हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये कैसे इफेक्ट करता है, इसे कैसे काम करता है? देखो, ये गोक्षुरा, अश्वगंधा, ये बेसिकली स्टेरॉइड्स नहीं है, ये अपने हर्बल हैं और ये वेलबींग के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारा आयुर्वेदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इन चीज़ों ये चीज़ें सही में काम करती हैं। बट जैसे कि मैंने बोला कि एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो ऐसे ही किसी एक चीज़ पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी नींद, आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग प्लस आपका खाना पीना,
प्लस ये एक्स्ट्रा जो आप हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहे हो, सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सभी चीज़ें आपकी अगर ऑन पॉइंट है तो ही रिजल्ट आएंगे। आप नहीं तो दुनिया की कोई भी दवाई खा रहे हो, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस लेवल हाई है, तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी और जो भी रिजल्ट आप चाहते हो इन सप्लीमेंट से वो आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, स्टेरॉयड अगर लेना है तो ओरल फॉर्म में अच्छा है या इंजेक्ट फॉर्म में अच्छा है? देखो, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओरल फॉर्म, इंजेक्टेबल फॉर्म, बेसिकली ये फॉर्मुलेशंस होती हैं। आप अगर केमिस्ट के पास में भी जाते हो, अगर पेन किलर लेने जाते हो तो पेन किलर ओरल फॉर्म में भी आती है। एमरजेंसी केसेस में आपको आई भी दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में या कैसे उसको इस्तेमाल करना, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ओरल फॉर्म में अच्छा, इंजेक्टेबल फॉर्म में। अगर मैं टैबलेट की बात करूँ, 5 mg की टैबलेट चाहे ओरल फॉर्म में हो चाहे इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, राइट, वो एक्टिव मोइटी तो उसमें सेम ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ये देखना पड़ता है कि ओरल जो स्टेरॉइड्स आते हैं वो C17 अल्कलेटेड होते हैं, वो आपके लीवर पे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, हेपाटोटॉक्सिसिटी उनकी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से इंजेक्टेबल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन इंजेक्टेबल के अपने खुद के इफेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ओरल के अपने खुद के फ़ायदे और नुकसान हैं, तो वो कंपाउंड टू कंपाउंड भी वेरी करता है। अच्छा, तो सर आप क्या सजेशन देगा हम लोग का जो व्यूअर्स है, अगर स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है? देखो, मैं पहली पॉइंट यही बोलना चाहूँगा कि स्टेरॉइड आपको यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आपको अगर एक अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छा दिखना है, कि आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो उसके लिए स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है। स्टेरॉइड सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है। दूसरी चीज़, स्टेरॉइड अगर आप लेते भी हो, आपको रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट नहीं टिकेगा। 2 महीने 3 महीने में आप पहले जैसे हो जाओगे, तो आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा और आपकी हेल्थ भी डैमेज होगी। जब तक आपका ये प्रोफेशन नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड। और नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन 6 महीने में, साल भर में बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप प्रॉपर डाइट या ट्रेनिंग प्लान फॉलो करते हो। स्टेरॉइड्स की आपको ज़रूरत नहीं है। डोंट गो फॉर शॉर्टकट से आप जाओगे, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, स्टेरॉइड्स के भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे हम सिर्फ अच्छा ही देखते हैं, लेकिन क्या क्या उनके साथ में हो रहा है, क्या क्या मेडिकल कंडीशन है, वो सब कोई पब्लिक में आके थोड़ी ना बताएगा। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि इनको खाने से बॉडी बन जाती है। हर चीज़ का एक 2 पहलू होते हैं। सो ऑल अनलेस एंड अनटिल यू आर अवेयर ऑफ द डार्कर साइड, इन चीज़ों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सर आपका साथ लास्ट क्वेश्चन, आपको सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन स्टेरॉइड यूज़ होता है? देखो, सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड की क्लासिफिकेशन स्टेरॉइड्स को बहुत सारे यूज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग अगर गेनिंग की बात करूँ तो डेगारेस्टा बोल्डी यूज़ कर लेते हैं। कटिंग की बात करूँ तो टी-प्रॉप, ट्रैन, वेंस्टॉल, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है ये बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि कॉपी पेस्ट का काम हो रहा है और ये चीज़ ऐसे कॉपी पेस्ट वाली है ही नहीं। इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, एक के कोच ने उसको जो चीज़ दी वही कॉपी पेस्ट करके वो अपने स्टूडेंट को दे रहा है। उनको पता नहीं कितनी डोज में देना, क्या देना। आजकल तो फीमेल एथलीट्स को भी लोग देना स्टार्ट कर दिया। उनकी वॉइस चेंज हो रही है, उनका फेस चेंज हो रहा है। तो ये देख के थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, और ध्यान देना चाहिए। कोचेस को भी देना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए। और शायद इसलिए मैंने फ्रिस्क के नाम से अपनी अकेडमी जो मैं कोर्सेज़ कंडक्ट करवा रहा हूँ, ये इसलिए करवा रहा हूँ एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एटलीस्ट मुझे अगर कुछ इन चीज़ों के बारे में पता है तो मैं लोगों को बताऊं कि ये चीज़ ऐसी है। और अच्छाई हर कोई दिखाता, कोई भी इनका डार्क साइड नहीं दिखाता। तो ये जो एजुकेशनल वर्कशॉप हो रहे हैं, ये एक्चुअल में डार्क साइड दिखाने के लिए ही हो रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, ताकि लोगों की आंखें खुलें, लोग ज़्यादा जागरूक हों और लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े। सर थैंक यू वेरी मच हम लोग के साथ रहने के लिए, और हम लोग का जो व्यूअर्स है बहुत अच्छा ইনফরমেশন जाएगा उन लोगों के पास। এরকম অনেক আরও ওয়ার্কশপ হওয়া দরকার আছে বন্ধুরা। আর তোমাদের বলছি বন্ধুরা, তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটাকে লাইক করো এবং শেয়ার করো, ঠিক আছে? আবার দেখা হবে কোনো একটা নতুন বডি বিল্ডারের সাথে, কোনো একটা নতুন এপিসোডে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো।